Hello children, this is Poonam Bagga welcoming you in your maths class. We are studying class 10th maths and today we are going to start a new chapter, chapter 5 arithmetic progressions. It is one of the very easy chapters in your syllabus and you will really enjoy solving the questions from this chapter. Let us first focus at the name of the chapter, arithmetic progressions. Arithmetic deals with numbers and progressions refer to something in progress, something in continuation. Let us first start with the basic building blocks in maths and these are our counting numbers 1, 2, 3, 4, 5 and so on. We use these numbers daily and what is special about these numbers? You will see that if we add 1 to the first number 1 then we get the next number 2. Similarly, if we add 1 to 2 we get the number 3. If we add 1 to 3 we get the next number 4. And if we add 1 to 4, we get the next number 5. So, these numbers are forming a list of numbers which are related to each other by some rule. And with the help of this rule, we can get the next number also after this number. If I add 1 to 5, we will get the next number which is 6 and so on we can get the next coming numbers. Now, if we add 2 in place of 1, then what we will get? If I add 2 now, then we will get 1 plus 2, 3. Again if we add 2, we get the next number as 5. Again if we add 2, the next number will be 7 and if we again add 2, then the next number will be 9. So now what we are seeing? We are getting a list of numbers which are actually the odd numbers which we deal daily. And now if we start with the number 2 and keep on adding 2, then we will get the list of these numbers which are in fact the even numbers. So what we are seeing, that whenever we are adding the same number, we are getting the next number, or we can say that between any two consecutive numbers the difference is the same. Here in this case it is plus 2 plus 2. So here what we see, that the difference between two numbers is the same and we can get the next number by following this rule which says that add 2 and then you will get the next number, isn't it? Let us consider these list of numbers also. Here we have 100, 70, 40, 10 and so on. अब आप देखिए इन नंबर्स में क्या कोई कनेक्शन है, क्या कोई रूल है जिससे ये सभी नंबर्स आपस में रिलेटेड हैं. तो आप देखेंगे यहाँ पर 100 में से अगर हम 30 माइनस कर दें तो हमें मिल रहा है 70. इसी तरह से 70 में से 30 माइनस कर दें तो हमें मिल रहा है 40 और यहाँ पर अगर हम माइनस कर दें तो हमें मिल रहा है 10. और अब क्या आप इसी रूल को फॉलो करते हुए अगला नंबर बता सकते हैं? ऑब्वियसली यू कैन टेल. If we subtract 30 from 10, you will get the next number as minus 20 and so on you can get the coming next numbers. इसी तरह से इस numbers की list पर देखते हैं -3, -2, -1, 0. तो अब आप बताइए इनमें क्या rule आप देख पा रहे हैं? -3 and -2. If I add 1 to -3, we will get -2. Similarly, if I add 1 to -2, we will get -1. If I add again 1 to -1, we will get 0. And now what should be the next number? Obviously, we should add 1 to 0 and then the next number will be 1. Again, if we add 1, the next number will be 2 as we discussed just now. Similarly, if we look at this list of numbers, तो आप क्या देख रहे हैं? 3. सेम ही है अगला नंबर भी 3. तो यहाँ हम एक्चुअली कुछ भी ऐड नहीं कर रहे या हम कह सकते हैं कि वी आर एडिंग 0. इसी तरह से फिर से हमने 0 ऐड किया तो वापस हमें 3 ही मिल गया. फिर से 0 ऐड किया तो 3 ही मिल गया और अगला नंबर भी 0 ऐड करने से 3 ही मिलने वाला है. इस नंबर की लिस्ट पे चलते हैं -1 एंड -1.5. तो यहाँ पर हम -0.5 कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं वी आर सब्ट्रैक्टिंग 0.5 और वी कैन से दैट वी आर एडिंग -0.5. तो आप जब इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो माइनस माइनस ऐड होता है, सो इट विल बी -1.5. अगेन इफ वी
subtract 0.5 or we say add minus 0.5, then we get the next number which is minus 2. And again if we now add minus 0.5, we will get the next number. And now can you tell what will be the next number in this list of numbers? Obviously we will get it by adding minus 0.5 to minus 2.5. आप करिए यहाँ पर minus 2.5 और हम add कर रहे हैं minus 0.5. This will be 5 and 5 10. Here we will have minus 3.0. तो अगला नंबर हो गया minus 3.0. And each of the numbers in the list is called a term. यहाँ हम हर नंबर को बार बार नंबर कह रहे हैं, एक्चुअली हम इसको बोल सकते हैं टर्म ऑफ दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स. तो यहाँ आप देखेंगे ये तो हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, दिस इज द फोर्थ टर्म, एंड नाउ वी हैव रिटन द फिफ्थ टर्म. Are you getting it? So what do you see here? We are having some list of numbers and there is something very special about these numbers. What is it? That we are getting the next term in each list of numbers by adding the same number. Some fixed number is being added to each term to get the next term. Or what we see that the difference between any two consecutive terms is the same. हम अगली टर्म कैसे ले पा रहे हैं? जब हम पहले वाली टर्म में कोई एक फिक्स्ड नंबर है उसे बार बार ऐड कर रहे हैं तो हमें आगे आने वाली अगली टर्म्स मिल रही हैं. और साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं कि दो लगातार आने वाली टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सभी केसेस में सेम है. यहाँ पर दो लगातार आने वाली टर्म्स के बीच में आप देखेंगे माइनस 0.5 का डिफरेंस है, यहाँ पर आप देखेंगे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर माइनस 30 का डिफरेंस है. तो आप क्या देख रहे हैं कि सभी टर्म्स आपस में ये दोनों रूल से कनेक्टेड हैं. पहला कि हम कोई भी फिक्स नंबर ऐड करते जाएंगे तो अगला नंबर मिल जाएगा, और दूसरा अगर हम दो लगातार आने वाली टर्म्स के बीच में डिफरेंस फाइंड करें तो वो बिल्कुल सेम होगा. तो ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. लेट अस हैव अ लुक. An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. तो preceding term में जब हम एक fixed number add कर रहे हैं तो हमें आगे आने वाली terms मिल रही हैं. And this fixed number is called the common difference of the AP. It can be positive, negative और इट कैन बी ज़ीरो. अभी हमने देखा था इस केस में पॉजिटिव है हमारा कॉमन डिफरेंस, 1 ऐड होता जा रहा है. इस केस में हमारा कॉमन डिफरेंस है नेगेटिव -30. जो दो लगातार आने वाली टर्म्स के बीच में डिफरेंस है उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस. और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और ज़ीरो भी. यही बता रहे हैं यहाँ पर कि इस केस में पॉजिटिव डिफरेंस है, इस केस में नेगेटिव डिफरेंस है, और इस केस में आप देख रहे हैं कि डिफरेंस इज ज़ीरो बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. इज इट ओके? नाउ सच लिस्ट्स ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड arithmetic progressions. And now what is the general form of an arithmetic progression? Let us discuss it. General form: if the first term is A and the common difference is D, then the general form of an AP. First let me tell you that we denote the first term by the letter small a. It is a common practice. और common difference को हम denote करते हैं स्मॉल डी से. तो जब हम इन लिस्ट ऑफ नंबर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो बहुत काम की हैं. एक तो है ये फर्स्ट टर्म हर एक के केस में, क्योंकि यहीं से हमारा प्रोग्रेशन स्टार्ट हो रहा है. दिस इज़ डिनोटेड बाय द लेटर स्मॉल ए जो फर्स्ट टर्म है. और दूसरी चीज़ जो काम की है वो है ये कॉमन डिफरेंस, जो सभी लगातार आने वाली टर्म्स के बीच में डिफरेंस रहता है. तो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के दो मेन फीचर्स होते हैं. पहला है फर्स्ट टर्म और दूसरा है कॉमन डिफरेंस. अगर हमें ये दोनों पता है तो हम कोई भी एपी बना सकते हैं. लेट अस डिस्कस हाउ. फर्स्ट वी राइट द जनरल फॉर्म ऑफ अ एपी. लेट अस सी. वी कॉल arithmetic progression as AP also. It is its short notation. So again and again if we say arithmetic progression, it's easy to say AP. So we will be using this abbreviation. If the first term is small a and the common difference is small d, then the general form. Here we see
that the first term, let us denote it by A1, first term. We call it as A1, it is A here. Then the second term, we can denote it as A2. It will be what? A plus D. देखिए आप, ये कॉमन डिफरेंस है. कॉमन डिफरेंस का मतलब वो नंबर जो बार बार ऐड करते हुए हमें आगे से आगे नंबर्स मिलते जाएंगे. तो पहला नंबर तो है हमारा A. अब कॉमन डिफरेंस क्योंकि D है तो अगली टर्म क्या होगी? ऑब्वियसली A में हम क्या ऐड कर देंगे? D. तो ये हो गई हमारी सेकेंड टर्म विच वी आर डिनोटिंग बाय द लेटर A2 एंड इट इज A प्लस D. अब अगर हम बात करें थर्ड टर्म की, इट इज डिनोटेड एज A3 और ये क्या हो जाएगी? जो सेकेंड टर्म है उसमें एक और D ऐड कर देंगे. सो इट विल बी A प्लस D प्लस D. इट विल बी A प्लस 2D. देखिए आप, पहली टर्म थी A, उसमें हमने D ऐड किया, फिर इसमें आगे और D ऐड किया तो ये हो गई A प्लस 2D. तो अब आप बताइए कि फोर्थ टर्म क्या होनी चाहिए? It should be A4 and how we will get it? If we add the common difference D to the third term. जो हमारी थर्ड टर्म है उसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो हमें अगली टर्म मिल जाएगी. और ये क्या है? A प्लस 2D है थर्ड टर्म, इसमें हमने D ऐड कर दिया तो ये हो गया A प्लस 3D. दिस इज आवर फोर्थ टर्म. सिमिलरली वी कैन राइट द फिफ्थ टर्म. बताइए क्या होनी चाहिए हमारी फिफ्थ टर्म? उसे हम डिनोट करेंगे A5 से. सो इट विल बी फोर्थ टर्म प्लस द कॉमन डिफरेंस D. और ये कैसे मिलेगा अब? A प्लस 3D प्लस D. इट विल बी A प्लस 4D. समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा AP का? इट विल बी, लेट मी चेंज द कलर, A द फर्स्ट टर्म, देन A प्लस D which is the second term, then A plus 2D which is the third term, then A plus 3D which is the fourth term, then we can write A plus 4D which is the fifth term, and so on we can find the other terms also. So this is the general form of an AP. और ये हमें कैसे मिल रहा है? अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो बस हम इस कॉमन डिफरेंस को फर्स्ट टर्म में ऐड करके सेकेंड टर्म ले आएंगे, फिर आगे से आगे ऐड करते हुए कॉमन डिफरेंस को हम आगे से आगे अगली टर्म्स इजीली लिख सकते हैं. ओके, सो बाय एडिंग द कॉमन डिफरेंस वी आर गेटिंग द सक्सेसिव टर्म्स. लेट अस नाउ गेट अ फॉर्मूला फॉर द कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे कैसे? फॉर एन AP A1, A2, A3 to AN we have the common difference as AK plus 1 minus AK, where AK plus 1 and AK are the K plus 1th and the kth terms respectively. इसको समझते हैं हम. देखिए हमारी जो यहाँ पर एक AP वो लेते हैं, let us take it as -3, -2, -1 and so on. Let us take it -3, -2, -1, 0, 1, 2 and so on. तो अब हम कॉमन डिफरेंस कैसे पता करेंगे? बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करके. अगर हम A2 में से A1 माइनस करें, A2 और A1 आप समझ रहे हैं ना? A2 हो गया आपका सेकेंड टर्म और A1 है आपकी फर्स्ट टर्म. तो यहाँ पर आप देखेंगे ये फर्स्ट टर्म है जिसे हम A1 या A भी कहते हैं. फिर ये हो गई सेकेंड टर्म A2, ये हो गई थर्ड टर्म, दिस इज़ द फोर्थ वन, दिस इज़ द फिफ्थ वन, दिस इज़ द सिक्स्थ वन. जैसे आपके क्लास में रोल नंबर्स होते हैं ऐसे ही ये इनका सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, ऐसे मान लीजिए आप. तो इस तरह से हम पहले निकाल रहे हैं A2 माइनस A1, इन दोनों के बीच में डिफरेंस. वो कैसे आएगा? -2 माइनस -3. ये हो गया आपका A2 -2, फिर ये माइनस हम यहाँ से ले रहे हैं फॉर्मूले का, और फिर ये हो गया A1 जो है -3. दिस इज इक्वल टू -2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 1. तो हमने फर्स्ट टू टर्म्स के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया और वो है 1. इसी तरह से अगर हम A3 माइनस A2 निकालें, बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करें तो देखिए क्या आएगा? -1 इज द थर्ड टर्म माइनस -2. ये देखिए थर्ड टर्म है -1 यहाँ से, और सेकेंड टर्म है आपकी -2 जिसे हम माइनस कर रहे हैं. यहाँ से हो गया -1 माइनस माइनस प्लस 2. दिस इज अगेन इक्वल टू 1.
तो आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस, इट इज़ द सेम एवरी टाइम। इसी तरह से अगर हम A4 माइनस A3 निकालें तो कैसे मिलेगा, फोर्थ टर्म विच इज़ 0 माइनस द थर्ड टर्म विच इज़ -1, this will be equal to 0 plus 1, that is 1. And if we now find A5 minus A4, what we get, fifth term it is 1 and minus the fourth term which is 0, it will be again equal to 1. तो क्या देख रहे हैं आप कि लगातार जो भी दो टर्म्स आ रही हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो आ रहा है सेम, विच इज़ इक्वल टू द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP. एंड always remember that we get this common difference by subtracting the successive term and the preceding term. Successive term में से preceding term हम माइनस करेंगे, बाद वाली टर्म में से पहली टर्म माइनस करेंगे, A2 में से A1 माइनस करेंगे. आप D को ऐसे नहीं लिखेंगे A1 माइनस A2, दिस इज़ रॉन्ग. हम क्या करेंगे, बाद वाली टर्म में से पहली वाली माइनस करेंगे, A2 में से A1 माइनस करेंगे, A7 में से A6 माइनस करेंगे, A11 में से A10 माइनस करेंगे, बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू माइनस करेंगे, ना कि पहली वाली में से बाद वाली. ठीक है, अगर आपने ऐसा किया तो आपका साइन की गड़बड़ हो जाएगी. तो ये फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए आप, AK+1 माइनस AK, जहाँ पर AK+1 क्या है, K+1th टर्म, और AK क्या है, kth टर्म इस AP की, जो कि आगे आने वाली टर्म्स हैं उनको हमने सीरियल नंबर दे दिया है K+1 और K. ठीक है, तो अब आप अच्छी तरह समझ गए हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है. फर्स्ट टर्म होती है जहाँ से AP स्टार्ट हो रही है, और आप समझ गए होंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या है. इट इज़ द नंबर विच इज़ बीइंग एडेड अगेन एंड अगेन टू गेट द नेक्स्ट टर्म, एंड ऑल्सो इफ़ वी सब्ट्रैक्ट टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स then we get the difference which is called the common difference. यहाँ तक आप क्लियर हैं. अब हम बात करते हैं finite AP और infinite AP की. What is a finite AP? An AP with only a finite number of terms is called a finite AP. जिसमें countable number of terms हो, जिन्हें हम गिन सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं finite AP. और इसमें आप देखेंगे last term भी होती है. These arithmetic progressions have a last term. जैसे अभी हमने यहाँ पर इस तरह से छोड़ दिया आगे, तो यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं दिख रही है हमें, तो ये एक फाइनाइट AP नहीं है. फाइनाइट AP के केस में लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, और हम उसका फर्स्ट टर्म तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ लास्ट टर्म भी देख सकते हैं. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ कैलेंडर. इट इज़ द कैलेंडर ऑफ द मंथ मार्च 2022, एंड व्हाट डू वी सी इफ़ वी वांट टू टेक ओनली द थर्सडेज. तो आप देखिए थर्सडेज को डेट क्या हो रही है. इट इज़ 3 फर्स्ट, 3rd मार्च, देन 10th मार्च, देन 17th मार्च, देन 24th मार्च, and then 31st March. These are the Thursdays in this month. And now what is the difference between two consecutive terms? आप देखेंगे कि वीक में 7 डेज होते हैं, तो इन सभी डेट्स में 7 का गैप आएगा. देखिए आप 3 + 7 is 10, again +7 it's 17, again +7 it's 24, and then +7 it's 31. तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है 7, और क्योंकि ये काउंटेबल नंबर ऑफ डेट्स हैं तो इसलिए इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फाइनाइट AP. ऑल्सो वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टेयरकेस. अगर हम मान लें कि फर्स्ट स्टेप की हाइट है 6 इंचेस, ठीक है, तो सेकेंड स्टेप ये भी तो 6 इंच ही होगा, और ओवरऑल टोटल इसकी हाइट कितनी हो जाएगी. यहाँ ग्राउंड लेवल से अगर हम इसको ग्राउंड लेवल लें तो इसकी हाइट हो जाएगी 6 + 6 12 इंचेस. ये थर्ड स्टेप की हाइट हो जाएगी 12 + 6 इट विल बी 18 इंचेस. फोर्थ स्टेप की हाइट हो जाएगी 24 इंचेस. फिफ्थ स्टेप की हाइट हो जाएगी 30 इंचेस. सिक्स्थ स्टेप की हाइट हो जाएगी आपकी 36 इंचेस, और सेवेंथ स्टेप की हाइट हो गई आपकी 42 इंचेस. तो आप क्या देख रहे हैं कि क्योंकि ये स्टेयरकेस है तो हाइट तो सेम होगी हर स्टेप की. जो राइजर है यहाँ पर, पहला राइज, सेकंड राइज, थर्ड राइज, ये सभी इक्वल होते हैं. ऐसा तो नहीं होता है कि एक छोटा है एक बड़ा है, ऐसा तो नहीं होता है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इट इज़ ऑल्सो फॉर्मिंग एन AP. द हाइट ऑफ ईच स्टेप
from the ground level. It is also forming an AP, और क्योंकि सीढ़ियाँ तो limited होती हैं, so it is an example of a finite AP where we have the last term also. Okay, next we take the infinite AP. An AP which does not have a last term is called an infinite AP, जिसमें last term हमें नहीं पता है. And obviously the list of even and odd numbers, it is an infinite AP. 2, 4, 6, 8, 10, 12 और आगे हमें नहीं पता कहाँ तक जा रही है ये लिस्ट. तो ये है infinite AP का एग्जाम्पल, और ये है list of odd numbers, ये भी endlessly जा रही है, तो इसलिए ये भी एक एग्जाम्पल है infinite AP का. Getting the point? So now we have understood what is an arithmetic progression, what is the first term, what is the common difference. Now we can easily form an AP if we know the first term and the common difference. Forming an AP. Here we take one example. Here A is 4 and the common difference D is 3. Then we have to tell the AP. देखिए आप, first term A क्या है? First term it is 4. तो first term हो गई आपकी 4. सेकेंड टर्म कैसे मिलेगी आपको? कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 3 को ऐड करते जाएंगे. 4 में आप 3 ऐड करिए, 7 हो गई सेकेंड टर्म. फिर थर्ड टर्म कैसे मिलेगी आपको? 7 में फिर से 3 ऐड कर लीजिए, इट विल बी 10. फोर्थ टर्म कैसे मिलेगी? जो 10 आई है थर्ड टर्म, उसमें 3 फिर से ऐड कर लीजिए, इट विल बी 13. So every time whenever we will be adding this common difference 3, we will be getting the next term. तो AP क्या हो गई अब हमारी? It will be 4, 7, 10, 13 and then 16 and so on. We can write it endlessly. Okay? तो अब हमने जब हमें A और D दिया है तो AP इजीली बना ली है. इसी तरह से अगर A हमारा है -7 और D है -2, तब AP क्या होगी? इस केस में आप देखेंगे फर्स्ट टर्म विच इज़ A, इट इज़ -7. देन द सेकेंड टर्म वो कैसे मिलेगी? जो -7 है फर्स्ट टर्म, उसमें हम ये कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे. सो ऐड -2, इट विल बी -7 और प्लस माइनस हमें मिलेगा -2, इट विल बी -9. समझ रहे हैं आप? अब थर्ड टर्म कैसे मिलेगी? ये जो सेकेंड टर्म है -9, इसमें फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लेते हैं, जो कि है -2, उसको ऐड कर लिया. तो अब अगली टर्म क्या हो गई? -9, अगेन प्लस माइनस इज -2, इट विल बी -11. इसी तरह से फोर्थ टर्म अगर हमें लिखनी हो तो थर्ड टर्म में हम फिर से -2 को ऐड करेंगे एंड इट विल बी इक्वल टू -13. तो इस तरह से हमारी AP क्या हो जाएगी? इट विल बी -7, -9, -11, then -13, then it will be -15 and so on. तो अगर हमें पहली टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तब हम आसानी से AP लिख सकते हैं. आई होप इट इज़ क्लियर. ऑल्सो इफ we have been given some list of numbers, we can identify whether it is an AP or not. हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दी हुई है ये एक AP है या नहीं, और फिर उसमें भी फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, ये कैसे पहचानेंगे? तो आप देखिए फर्स्ट एग्जांपल 6, 9, 12, 15. हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तो हो गई फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म. अब लगातार आने वाली टर्म्स के बीच में डिफरेंस देखते हैं, क्या वो इक्वल आ रहा है या नहीं. वी फर्स्ट फाइंड A2 minus A1. It is 9 minus 6, it is equal to 3. 9 minus 6. फिर हम निकालेंगे A3 minus A2. थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म. याद रखिएगा हम कैसे कॉमन डिफरेंस पता करते हैं? बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करते हैं. तो ये हो गया आपका 12 minus 9, it is equal to 3. Then we take A4 minus A3. A4 is 15 and A3 is 12. Again the difference is 3. तो हम देख रहे हैं लगातार दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 का आ रहा है. तो इसका मतलब क्योंकि डिफरेंस सेम है तो ये एक AP है. Since the difference between two consecutive terms is same every time,
देयरफॉर इट इज एन AP। ये नंबर्स एक AP फॉर्म कर रहे हैं और ऐसे केस में फर्स्ट टर्म तो आपकी हो गई 6 और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, इट इज इक्वल टू 3, दिस नंबर 3। ठीक है, तो कैसे पता करते हैं हम कि कोई भी सीरीज या लिस्ट ऑफ नंबर्स AP है या नहीं है, AP फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। इसमें हम करेंगे A2 माइनस A1 फाइंड आउट करेंगे पहले, फिर A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3, जो भी यहाँ पर हमें टर्म्स दी हैं उनके बीच में हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर वो डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये एक AP है। इसी तरह से ये एक और एग्जाम्पल है, यहाँ भी हम प्रोसीड करते हैं। पहले हम निकालते हैं A2 माइनस A1, इट इज़ 3 माइनस 6, इट इज़ इक्वल टू -3। फिर हम निकालते हैं A3 माइनस A2, A3 इज़ 0 एंड A2 इज़ 3, दिस इज़ अगेन इक्वल टू -3। फिर हम निकालते हैं A4 माइनस A3, it is -3 minus 0 again -3। so yes it is an AP, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है और ऐसे केस में A जो फर्स्ट टर्म है वो तो है 6 और कॉमन डिफरेंस है इक्वल टू -3। ठीक है, वी नाउ टेक दिस एग्जाम्पल। यहाँ पर भी हम पहले A2 माइनस A1 निकालते हैं, इट इज़ 1 माइनस 1 0, सेकेंड टर्म भी 1 है और फर्स्ट टर्म भी 1 है। फिर हम निकालते हैं A3 माइनस A2, इट विल बी 2 माइनस 1, थर्ड टर्म है 2 और सेकेंड टर्म है 1, इट इज इक्वल टू 1। नाउ बोथ दीज डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल एंड सो इज दिस एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? No, because the difference between two consecutive terms is not equal, it is not an AP. No. Why no? Since A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2। और ऐसे केस में कॉमन डिफरेंस पता करने का भी मतलब ही नहीं है क्योंकि वो तो इक्वल है ही नहीं। नेक्स्ट वी टेक वन एग्जाम्पल फ्रॉम योर बुक। लेट अस सी व्हाट इट इज। For the AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 and so on, write the first term A and the common difference D। तो ये तो बहुत easy है। फर्स्ट टर्म बताइए क्या होना चाहिए? फर्स्ट टर्म A, it will be obviously 3/2, ये तो देखते ही बता सकते हैं, बहुत easy है। And then we have to find the common difference also। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में ही दिया है कि ये एक AP है, देखिए दिया हुआ है, तो हम कोई भी दो लगातार आने वाली टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट करके कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। और याद रखिएगा बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करनी है। तो आप या तो निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 या आप निकाल सकते हैं A4 माइनस A3। कोई भी बाद वाली टर्म में से उसकी जस्ट पहले वाली टर्म माइनस करेंगे और हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। और ऐसे केस में वी commonly take it as A2 minus A1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेते हैं, इट इज़ 1/2 माइनस द फर्स्ट टर्म विच इज़ 3/2। टेक 2 एज द LCM, इट विल बी 1 माइनस 3, ये हो गया -2/2, इट इज़ इक्वल टू -1। तो A तो हो गया 3/2 और कॉमन डिफरेंस हो गया -1। नेक्स्ट वी हैव वन मोर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP। अब हमें कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स दी हुई हैं और हमें पता करना है कि क्या वो एक AP फॉर्म कर रही हैं या नहीं। इफ़ दे फॉर्म एन AP, राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। अगर AP है तो हमें आने वाली अगली 2 टर्म्स भी लिखनी है। फर्स्ट वन इज दिस। अगेन लेट अस सी हियर द फर्स्ट टर्म, it is equal to 4 and now let us find A2 minus A1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। कैसे पता करते हैं कि ये एक AP है या नहीं? लगातार आने वाली 2 टर्म्स के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर एवरी केस हमें सेम डिफरेंस मिल रहा है तब तो ये AP है, अदरवाइज इट इज़ नॉट। तो पहले हम लेंगे इन दोनों का डिफरेंस, A2 माइनस A1, इट विल बी 10 माइनस 4 6। देन वी फाइंड A3 माइनस A2, ये है थर्ड टर्म, ये है सेकेंड टर्म, सो इट विल बी 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। फिर हम निकालेंगे A4 माइनस A3, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर रहे हैं, 22 माइनस 16 एंड यू विल सी इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 6। तो क्या ये एक AP है? देखिए तीनों ही डिफरेंस सेम है, इसका मतलब 6 ऐड कर करके हमें नेक्स्ट टर्म्स मिल रही हैं। सो येस इट इज़ एन AP। वी कैन राइट हियर सिंस द डिफरेंस
ए के प्लस 1th टर्म और kth टर्म के बीच में डिफरेंस जो है इट इज सेम एवरी टाइम, therefore the given list of numbers, let me make some space, form an AP। अब क्योंकि ये एक AP है तो नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखनी होंगी, द नेक्स्ट 2 टर्म्स are, this is the 4th term, we will find the 5th term now। 5th term कैसे मिलेगी हमें? 4th term में हम जो कॉमन डिफरेंस है 6 वो ऐड कर देंगे, और वो क्या है 4th term? इट इज़ 22 प्लस 6 इट विल बी 28। और इसी तरह से 6th term कैसे मिलेगी? 5th term में फिर से हम 6 ऐड कर देंगे, 28 प्लस 6 इट विल बी 34। So these are the next 2 terms in this AP। और यहाँ आप लिख सकते हैं, since the difference is same every time, the given list of numbers form an AP with D equal to 6। जो कॉमन डिफरेंस है वो भी हमने यहाँ पर बता दिया है। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट वी हैव वन मोर पार्ट, दिस वन अगेन वी हैव टू चेक वेदर इट इज़ एन AP और नॉट। तो कैसे पता करेंगे? बाद वाली टर्म में से पहली वाली माइनस करेंगे और ऐसे लगातार आने वाली टर्म्स में सभी में हम डिफरेंस देखते हैं, सेम डिफरेंस है तो AP है। ओके, A2 माइनस A1 इट विल बी -1 ये है A2, ये है A1, तो ये हो गया -2। फिर हम निकालेंगे A3 माइनस A2, ये है A3, ये है A2, ये A1 एंड ऑब्वियसली इट इज़ A4। सो A3 माइनस A2 -3 -1, ये बीच में जो माइनस है ये फॉर्मूले का है और ये माइनस तो इस टर्म का अपने आप ही है। दिस विल बी -3 प्लस 1 इक्वल टू अगेन -2। सो दे आर इक्वल टिल हियर। A4 माइनस A3, A4 देखिए आप -5 है, -3 क्योंकि थर्ड टर्म क्या है -3, तो उसको हमने माइनस कर दिया। यहाँ से हमें मिल रहा है -5 प्लस 3 इट इज़ अगेन इक्वल टू -2। सो हियर वी कैन राइट सिंस द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाली लगातार टर्म्स, इज सेम एवरी टाइम, therefore the given list of numbers form an AP with D equal to -2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? -2। अब हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स भी निकालनी होंगी क्योंकि ये एक AP है, तो अब हम इजीली निकाल सकते हैं द नेक्स्ट 2 टर्म्स। These are, first we will find the 5th term, it will be 4th term plus the common difference D। 4th term कितनी है आपकी? देखिए -5 है और कॉमन डिफरेंस जो हम ऐड करेंगे वो है -2। यहाँ से हमें मिल गया -5 एंड -2 इट विल बी -7। यहाँ प्लस माइनस माइनस रहेगा और फिर क्योंकि दोनों नंबर्स नेगेटिव है तो ऐड करेंगे और साइन भी नेगेटिव आएगा। देन द 6th टर्म इट विल बी 5th टर्म प्लस द कॉमन डिफरेंस और वो क्या है? -7 प्लस -2 इट विल बी इक्वल टू -9। तो इस तरह से आने वाली टर्म्स क्या हो गई? -7 -9 और इस तरह से चलती जाएंगी। ठीक है, वी हैव वन मोर पार्ट, -2 2 -2 2 -2 एंड सो ऑन। लेट अस फर्स्ट फाइंड A2 माइनस A1। आपको ये पता ही है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक है, A2 माइनस A1 इट विल बी 2 -2।
दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया है. नेक्स्ट वी विल फाइंड a3 माइनस a2. थर्ड टर्म आपकी है -2, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं सेकेंड टर्म जो है 2, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू -4. So are the two differences equal? No. You can see here it is 4 and it is -4. So what we see, since a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2. So is this an AP? No, because the common difference we are not getting it. The difference is not the same. We will write, since a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2, the given list of numbers does not form an AP. और अब क्योंकि ये AP नहीं है तो नेक्स्ट टू टर्म्स भी हम नहीं लिख सकते. नेक्स्ट वी हैव 1 1 1 2 2 2 3 3 3. इंटरेस्टिंग, इजंट इट? लेट अस फाइंड a2 माइनस a1. और अब आप समझ गए होंगे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ. लेट मी राइट इट प्रॉपरली. फिफ्थ टर्म, this is sixth, this is seventh, this is eighth, this is ninth. Okay, so 9 terms have been given, and a2 minus a1, it will be 1 minus 1, both terms are equal, this is equal to 0. Then a3 minus a2, third term भी 1 है और a2 भी 1 है, again the difference is 0. Okay, then a4 minus a3, fourth term आपकी है 2 और थर्ड टर्म है 1, and now the difference is 1. So what do we see? 2 बार तो difference same आ गया, लेकिन third time तो difference अलग हो गया. इसका मतलब इसकी जो सभी terms हैं उनके बीच में same gap नहीं है. The difference is not common, and we can write here, since the difference between consecutive terms is not equal, the given list of numbers does not form an AP. और क्योंकि ये AP नहीं है तो नेक्स्ट टू टर्म्स भी हम नहीं निकाल सकते. So I hope it is clear. This was the introduction part. Now in the next video we will learn and solve exercise 5.1 based on all this. Before we take it in our next video, try to do those questions once on your own. Try to do them first yourself and then you can verify the answers from here. Okay? Goodbye.